So, Assalamu alaikum, dear students. Welcome again. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर है दैट्स रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो उसी के रिलेटेड टॉपिक है टुडे दैट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है दैट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मली एक हेल्दी वुमन जो होती है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन द oviduct, or the we just also call the fallopian tube. Okay, oviduct and fallopian tube. After certain cell stage that that once that zygote we just call that embryo, it gets it comes down, descends down and settles in the यूट्रस दैट्स कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती है एंड आफ्टर द पीरियड ऑफ 9 months on we just called as a gestation period, and then time will come the when possibilization take place and finally जो हमारा जो उसका जो from the time of conception till the time of possibilization जो एक healthy baby रिलीज किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि सम ऑफ द वुमेन्स जो होती हैं, कुछ वुमेन्स ऐसे होते हैं जिनके जो ओविडक्ट्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं एंड such women cannot produce the babies in the normal way because the eggs released by their ovaries or ovary cannot meet the sperms, and the fertilization does not take place in these women. Okay, what next? तो क्या होता है कि अगर एक वुमन है जिसके ओविडक्ट्स ब्लॉक हो गए हैं तो स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ पे एग को फर्टिलाइज कर सकते, या फर्टिलाइजेशन में एक हिंड्रेंस है, ब्लॉकेज है, ओविडक्ट ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ स्पर्म्स की। तो क्या होता है इस सिचुएशन में एक वुमेन जो होगी शी कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज, एंड सच a woman where the oviducts are blocked due to some reasons, and woman is not able to produce the babies, and such woman is to be called a sterile woman. Okay, is to be called a sterile woman. That's why I just mentioned here the oviduct of some of the women are blocked due to some reasons, and such women cannot produce the babies in the normal way because the eggs released by the ovary cannot meet the sperms. It is because of the blockage. It's because of the blockage of the oviducts or the fallopian tube and get fertilized in the oviduct. Women who cannot produce babies are to be called as sterile babies, called as to be called as sterile woman. Sterile woman, okay, sterile woman. So sterile women are women who cannot produce babies, are to be called as sterile woman. Now, in such cases, even when woman when the oviducts are blocked and the normal fertilization does not take place, what is the technique to be used? The technique to be used in such cases in such cases that's to be called as in vitro fertilization. So in vitro fertilization, the technique, the fertilization of egg with the sperm is carried out in a dish or a glass tube. Okay, it's carried in a dish or a glass tube. That's why it is to be called as in vitro fertilization. In vitro fertilization, where or it's also to be called as we also called as the baby that develops outside the baby. It's also to be called as test tube baby, and the type of fertilization is also to be called in vitro fertilization or IVF, short form known as IVF. So each trial woman can have babies
यूजिंग द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स इन गिलास फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने अभी आपसे कहा गिलास और डिश, गिलास ट्यूब और डिश में, सो अ गिलास ट्यूब और अ डिश, glass dish or a glass tube rather than in the body of the woman. So means the normal development, it's not that whole of the baby develops inside the dish or inside the test tube, but after certain cell stage the fertilization is done. The fertilization takes place outside the body, and then zygote is formed after certain cell stage. We are allowing this zygote to develop into embryo after certain cell stage. Then this egg is put back into the female reproductive system, that's in uterus, where the further development of this embryo take place. So this is not, don't मेक इट, आप ऐसा ना समझे कि होल ऑफ द बेबी जो है सूरी डेवलपमेंट सारी एक टेस्ट ट्यूब में होती है, एक गिलास डिश में होती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने कहा एक वुमेन से मतलब एक वुमेन से एग को निकाल के उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ सेल स्टेज तक उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो एलो की जाती है एक टेस्ट ट्यूब में। तो उसके बाद सर्टेन सेल स्टेज के बाद उसको फिर से अंडर द प्रॉपर साइंटिफिक मैनर के अंदर, अंडर प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर उसको इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में, जहाँ पे उसकी पूरी डेवलपमेंट होती है। और पूरी डेवलपमेंट के बाद फर्दर डेवलपमेंट के बाद आफ्टर द पीरियड एंड हेल्थी बेबी इज डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पाचुरेशन हो जाती है गेस्टेशन पीरियड के बाद। तो मैंने कहा जो टेक्निक है जहाँ पे एक जो स्ट्रेल वुमेन जो होती है, स्ट्रेल वुमेन जो होती है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बेबीज को, तो इस टेक्निक को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो या IVF उसे कहते हैं। अब चलिए, अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्टेप्स क्या क्या है, हाउ दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस टेक प्लेस, और व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। पहला स्टेप है एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ अ वुमन। जो वुमन होती है उसकी लेप्रोस्कोपी से उसके एक स्मॉल कट बनाया जाता है, ओके, इन अ साइड ऑफ एन एब्डोमेन, and an optical fiber tube is inserted into her body so that a doctor can see the ovary and take out the tiny eggs. तो एक इंसेशन की जाती है, इंसेशन के द्वारा एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव के अंदर, जहाँ पे उसकी ओरी से एग्स निकाले जाते हैं। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप एग्स को रिमूव करना फीमेल के reproductive part, that's to be called as ovary. This is the first very step. Now second step, the woman's husband provide the sperms. अब जब एग निकाले गए तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट इन एग्स को फर्टिलाइज करना है। अब फर्टिलाइजेशन होगी किससे, तो फर्टिलाइजेशन ओबियसली स्पर्म से होगी। तो स्पर्म्स कौन डोनेट करेगा, इट स्पर्म डोनेट करेगा या तो उसका हस्बैंड डोनेट करेगा, तो हस्बैंड ही ओबियसली डोनेट करेगा। तो इन केस अगर हस्बैंड की स्पर्म्स की मोटिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, अबॉर्टिव टाइप है, तो उस टाइम किसी डोनर से स्पर्म्स लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है हस्बैंड ही स्पर्म्स डोनेट करेगा फर्टिलाइजेशन के। तो दिस इज सेकंड स्टेप, हस्बैंड, द वुमन्स हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन। नाउ थर्ड स्टेप, द स्पर्म्स दैट आर obtained, they are mixed with the eggs carry out the fertilization. अब तीसरा स्टेप है, the sperms are mixed in the glass tube to carry out the fertilization. Okay, so this fertilized eggs or zygotes develop in embryos. अब उसके बाद ये मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो एग्स होंगे, ये जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इनको एलो किया जाएगा डेवलप होने के लिए। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट को एलो किया जाएगा डेवलप होने के लिए, means after certain cell stage. So after a week or 1 month, after a week or 1 or more embryos, after a week, एक हफ्ते के बाद, तो एक एम्ब्रियोज बनना है या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्स रिलीज किए जाएंगे। अगर एक एग होगा तो एक ही एम्ब्रियो बनेगा, अगर बहुत सारे एग्स
लिए गए तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बन सकते हैं, 1 से 2 भी एम्ब्रियोज बन सकते हैं, 2 से 3 भी एम्ब्रियोज बन सकते हैं। एज नंबर ऑफ द जितने नंबर ऑफ एग्स होंगे उतने स्पर्म्स भी फर्टिलाइज करेंगे और उतने ही एम्ब्रियोज भी बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर एक या एक से ज़्यादा एक हफ्ते के बाद एक या एक से ज़्यादा जो मतलब एम्ब्रियोज हो उनको इम्प्लांट किया जाएगा बैक। Embryos are placed back in the woman's uterus or womb, so gets implanted in uterus successfully, so the normal pregnancy occurs and the baby is born after the 9 months. So it's being the process where the इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। तो अभी ग्लास डिश में जितनी डेवलपमेंट होनी है तो अप टू सर्टेन सेल स्टेज के बाद इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा बैक। एम्ब्रियो में यूट्रस में डाला जाएगा, फीमेल की यूट्रस में, जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो टिल द 9 मंथ्स के बाद एक फुली मैच्योर फिट्स जो होगा, से हम बेबी कहते हैं, वो बॉर्न हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये है टेक्निक। तो टिल 1950s तक ये जो टेक्निक थी इनिशियली वाज डेवलप्ड फॉर कैरिंग आउट द रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स लाइक काउज एंड बुफेलोज। तो पहले पहले ये काउज एंड बुफेलोज पे अप्लाई किया गया था टिल 1950s तक। तो उसके बाद दिस टेक्निक वर्क सक्सेसफुली carried out in humans like in 1978। उसके बाद जो सक्सेस रेट थी, टेक्निक थी, it was only to you know that we just finding that though पहले पहले जो इसकी सक्सेस रेट थी, it was only to 30 to 40%, but with the passage of time it yield good results. So this is the technique that's yield even now, that's operative even today. In even today means that this is the technique, the modern technique, where the woman or the couples who do not produce, who are not able to carry out, who are not able to carry out a normal fertilization. So the in vitro fertilization is a technique which is then used, to which is then used for the normal fertilizations, where the where after the fertilization, the certain cell stage, this embryo are being placed back and the normal development take place inside the mother's inside the uterus or womb, and after the period of 9 months a normal baby is being released. So this is a modern technique we just called as in vitro fertilization. In vitro, मैंने कहा in vitro, it's in vitro means that it is inside a glass dish or a glass tube. That's why this is also to be called as the baby that's being developed, but it's also to be called as test tube baby. It's also to be called as test tube baby. Now तो मैंने अभी कहा 1950s तक जो था ये टेक्निक जो थी, ये सिर्फ फार्म एनिमल्स के लिए थी, जहाँ पे टेक्निक डेवलप हो गई थी सिर्फ फार्म एनिमल्स के लिए, जहाँ पे एक फार्म एनिमल्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती थी। लेकिन इन 1978 में इट वाज लुइस जॉय ब्राउन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट बेबी टू कंसीव्ड वाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो लुइस जॉय बॉर्न ये वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है जो कंसीव हुआ, जिसकी फर्टिलाइजेशन हो गई थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जनरल हॉस्पिटल में इंग्लैंड, सो द पेरेंट्स लेस्ली and Peter Brown were the parents of the Louis Joy Brown, the world's first baby, or the world's first test tube baby, which was developed or obtained through the in vitro fertilization. तो उसके बाद ये इनकी दूसरी बेटी भी हुई, लेस्ली एंड पीटर इनकी दूसरी बेटी भी हुई आफ्टर दैट। तो लुइस जॉय ब्राउन के बाद उसकी दूसरी बेटी भी हुई। तो इट वाज फर्स्ट नेम ऑफ द परहैप्स इट इज नेम इज नतालिया। हाँ,
तो इनकी दूसरी बेटी भी हुई, तो वो भी इसी टेक्निक से डेवलप की गई, ऑब्टेन हुई, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। तो लुइस जॉय ब्राउन वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, लुइस जॉय ब्राउन, तो जिसको डेवलप किया गया या कंसीव जो हो गया थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो पेरेंट्स कौन थे? लेस्ली एंड पीटर ब्राउन। Okay, so this was all about it, that what we called as test tube baby। मैंने कहा इसे टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती है। डोंट गेट कैन कन्फ्यूज रादर, कि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए कि किसकी सारी जो डेवलपमेंट सिर्फ टेस्ट ट्यूब में होती है, नहीं, अप टू सर्टेन सेल स्टेज। मैंने कहा एग लिया जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है एक स्पर्म्स के द्वारा, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट की डेवलपमेंट, एग स्टेज डेवलपमेंट हो जाती है, सेल डिवीजन को अलाउ किया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेल स्टेज के लिए, मानो 1 हफ्ते तक जितना भी सेल स्टेज होना है। तो उसके बाद जितना भी सेल डिवीजन होना, उसके बाद इस एम्ब्रियो को बैक इम्प्लांट किया जाता है मदर्स यूट्रस में, जहाँ पे एक मदर जो होती है नॉर्मली डिलीवर करती है, एक नॉर्मल बेबी को डिलीवर करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस। थैंक यू।